very important topic this week has been monetary policy report and GSAP 1.0. This is 1.0. This is monetary policy report has been submitted by the monetary policy committee of RBI. अभी बहुत पिछले लेक्चर में ही मैंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की थी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज गो एंड स्टडी दैट ऑल्सो. दिस इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान 1.0. बहुत अच्छा सा नाम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान 1.0. दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO. We'll be talking about the monetary policy, how expansionary monetary policy is implemented and how contractionary monetary policy is implemented. In the monetary policy report that the government has presented in the April of 2021, the rates have been unchanged. That is, the RBI stance has been accommodative. Accommodative means the RBI will do anything to keep the liquidity in the market available and the inflation under check. That is called accommodative stance. Okay, and the second plan is the second very important declaration in under the monetary policy report the RBI made was that the acquisition of long-term securities by the government through open market operations to control the yields of the long-term securities. The bond yields of long-term securities has been rising. Okay, तो इसको कंट्रोल करने के लिए last year government brought Operation Twist. That is very important from the prelims point of view this year. Okay, and GSAP 1.0 has been brought this year, now in April, and the first tranche will be starting from 15th of the April, where 25,000, the whole GSAP plan is about 1 trillion rupees. ठीक है, and 25,000 crore rupees का first installment of purchase of long-term government securities has started from 15th April onwards. Okay, how this is going to help, we'll be studying in this lecture. First of all, monetary policy report. Monetary policy committee was formulated in 2016. Okay, monetary policy committee was formulated in 2016 and it was given a target of flexible inflation targeting. Okay, 4 plus minus 2%. इन्फ्लेशन का टारगेट कितना सेट किया है गवर्नमेंट ने? 4 plus minus 2%. It's a very important thing. This topic is very important from prelims, mains and the general understanding of the India economic the whole scenario that we are going through. ठीक है, तो 2016 में गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया 4 plus minus 2%. Okay, 4 plus minus 2% was the flexible target that गवर्नमेंट सेट करती है इन्फ्लेशन टारगेट एंड अचीव टारगेट को अचीव करने का एम किसका होता है, गोल किसका होता है या पर्पस, जो mechanism through which that inflation target can be achieved is through RBI. Okay, there are two kind of policies in a country regarding finances. The first one is fiscal policy. Fiscal policy is governed by government. The second one is monetary policy. Monetary policy is governed by RBI. RBI is the institution that governs monetary policy because RBI is the institution that has the power to publish or to publish currency notes and to control the circulation or the flow of money in the economy. तो दो प्रकार की इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ देखी. The first one is fiscal policy. Fiscal policy is governed by the government. Fiscal policy में क्या होता है? Taxes. Okay, taxes first thing, fines, license और ये सारी चीजें जो कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो कि फ्लो ऑफ मनी को गवर्न करते हैं हमको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं एंड दैट इज गवर्न बाय गवर्नमेंट. बजट में गवर्नमेंट टैक्सेशन रूल्स लेके आती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. द सेकंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न्स द फ्लो ऑफ मनी डायरेक्टली इनटू द इकोनॉमी, दैट इज गवर्न बाय आरबीआई. नाउ inflation target is set by government of India, but the mechanism through which it is achieved is set by RBI. ठीक है, RBI के पास टूल्स हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का इकोनॉमी में. द फर्स्ट वन इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, बैंक रेट. तो जो पॉलिसी रेट्स हैव बीन अनचेंज्ड. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? रेपो रेट का मतलब है
कि व्हेन आरबीआई इज ऑफरिंग लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स, ओके, तो क्या होगा, अगर एसबीआई को आरबीआई से लोन लेना है तो उस पे जो उस लोन पे तो एसबीआई क्या करेगा, अपने कोलेट जो सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनको कोलेटरल के फॉर्म में आरबीआई के पास रख देगा ऑन अ प्रॉमिस दैट एसबीआई विल परचेज दिस सिक्योरिटीज आफ्टर 15 days ऑन अ प्री डिसाइडेड दैट इज 15 days, 14 days बेसिकली, फोर्टनाइटली। 14 दिन के बाद 15वें दिन एसबीआई वो अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई से वापस खरीद लेगा। इस प्रॉमिस के बेसिस पे आरबीआई से एसबीआई कुछ लोन लेता है, दैट इज, एंड उस लोन पे जो आरबीआई चार्ज करता है एसबीआई को इंटरेस्ट रेट, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। अंडरस्टूड? ओके, तो रेपो रेट सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीआई, है ना, और एसबीआई या कॉमर्शियल बैंक्स। तो फॉर एग्जांपल आरबीआई, इफ एसबीआई नीड्स लोन्स, ठीक है, तो अगर इसको 100 करोड़ रुपीस का लोन चाहिए, है ना, तो ये क्या करेगा, अपनी 100 करोड़ के इक्विवेलेंट की सिक्योरिटीज जो इसके पास है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब टी बिल्स, है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारी चीजें, इनको आरबीआई के पास कोलैटरल के फॉर्म में रख देगा, ओके, और आरबीआई से 100 करोड़ रुपीस ले लेगा as a loan. Now RBI, after giving that loan, will charge a rate of interest that is called 4% repo rate. Okay, that is a repo rate. अब what will happen if SBI after 14 days purchases this collateral from RBI back, then it is fine. Okay, otherwise what if SBI says that भैया हम तो अपनी सिक्योरिटीज परचेज नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, तो what will RBI do? RBI will sell these securities into OMO, open market operations, है ना, इन सिक्योरिटीज को, क्योंकि इन्होंने गिरवी रख लिया था उस सिक्योरिटी को, तो एंड नाउ SBI is not able to pay back, purchase the securities back, तो RBI इन सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू बेच के अपने 100 करोड़ रिट्रीव कर लेगा। अंडरस्टूड? So how is RBI going to control inflation through this? The very simple method is by increasing or decreasing repo rate. Understood? If repo rate is increased, तो SBI जो RBI से लोन ले सकता था उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। इंटरेस्ट रेट ऑलवेज रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरेस्ट रेट किन चीजों पे डिपेंड करता है ये भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे बहुत क्लियर कट है कि रेपो रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एसबीआई की इंक्रीज हो जाएगी। देन व्हाट विल हैपन इज आरबीआई जो अपने कस्टमर्स को लोन दे रहा है, फॉर एग्जांपल माल्या को जो लोन दे रहा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंक्रीज कर देगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लोन का इंक्रीज हो जाएगा तो द कस्टमर विल ट्राई टू नॉट टेक मोर लोन, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा लोन लेगा, जो कि पहले 3% इंटरेस्ट पे मिल रहा था, वो अब 5% इंटरेस्ट पे मिलने लगा, तो व्हाट विल हैपन कि दिस कस्टमर विल अवॉइड टेकिंग लोन फ्रॉम एसबीआई। ओके, इन दैट केस मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी विल रिड्यूस। नाउ अगर मनी सप्लाई क्यों रिड्यूस हो गई? क्योंकि माल्या ने पहले 100 करोड़ का लोन लेना था, अब 70 करोड़ का लोन ले रहा है, तो 70 करोड़ के लोन की वजह से मनी सप्लाई जो 100 करोड़ की हो सकती थी, दैट हैज रिड्यूस्ड, द कस्टमर्स हैव स्टॉप्ड स्पेंडिंग। ओके, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि मनी सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से सप्लाई डिक्रीज, ओके, तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन विल गेट अंडर कंट्रोल, क्योंकि इन्फ्लेशन इज इन अगर हायर मनी सप्लाई, दैट इज मनी, a lot of money is available, okay, and if a lot of money is available, then of course a lot of money is chasing small number of goods, तो goods की वैल्यू हाई हो जाएगी, goods का प्राइस हाई हो जाएगा, that will lead to higher inflation, okay। तो अब इसका रिवर्स क्या होगा? if a smaller amount of money is there but goods बहुत ज्यादा हैं, तो small amount of money chasing goods, तो goods को सस्ता होना पड़ेगा to bring about an equilibrium, that then
क्या होगा, इन्फ्लेशन लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स को सस्ता होना पड़ेगा टू मैच द स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी। अंडरस्टूड? तो दिस इज थ्रू रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, जब एसबीआई आरबीआई को लोन देगा तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो रिवर्स रेपो रेट, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अ स्पेशल ओवरनाइट लोन पे जो चार्ज करता है आरबीआई। फॉर एग्जांपल, इफ एसबीआई हैज बोरोड इट्स लिमिट ऑफ रेपो रेट एंड रिवर एंड ऑल, ठीक है, देन व्हाट विल डू, एंड स्टिल इसकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, फॉर एग्जांपल एसबीआई का लिक्विडिटी क्रंच है, then it can borrow from SBI through a higher rate of interest. Okay, sorry, repo rate 4% है। repo rate was normal borrowing fortnightly, लेकिन अगर SBI ने अपने ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर दिए हैं, SBI के पास जो लिमिट थी रेपो रेट के थ्रू बोरो करने की वो खत्म हो चुकी है, एंड SBI still wants to borrow from RBI to match its liquidity problem constraints, then what will SBI do? SBI will again go to RBI, भैया प्लीज हमें लोन दे दो, प्लीज हमें लोन दे दो। RBI के पास अब क्या ऑप्शन है? RBI दो तरीके से इसको देखता है। द फर्स्ट वन इज, एक तो इसको गर्ज है, इसको लोन चाहिए बहुत ज्यादा, मेहनत, बेचारे के पास लोन है नहीं, पैसा है नहीं, कहा चलो लोन तो तुम्हें हम दे देंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम चार्ज करेंगे तुम्हें हायर चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मजबूरी का फायदा तो हम उठाएंगे ही, तो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाते हुए 4.5% के इंटरेस्ट रेट पे देंगे। अगर तुम रेपो रेट भी अपना खत्म कर दिए हो, मतलब तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है, तो हमें तो डर लग रहा है तुम और पैसा लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे, एंड दैट फियर विल अकाउंट फॉर the risk that RBI is taking because SBI has already exhausted its repo rate, ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन रेपो रेट। ओके, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अ penal rate, it is a penal rate, and more importantly it is first of all a penal rate. The second point of view is it is overnight, for overnight loans, okay, for overnight loans, overnight loans मतलब एक दिन के जो लोन्स होते हैं जो कि लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए लिए जाते हैं, उनके ऊपर चार्ज करता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, तो दैट इज बैंक रेट इज नॉट बीइंग यूज्ड बट प्रिस्क्राइब होता है। अब यहाँ पे यू कैन सी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज 4.25% एंड रेपो रेट इज 4%। तो MSF इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट। अंडरस्टूड? मतलब अगर हम यहाँ पे एक चार्ट बना लें, तो अगर ये रेपो रेट है, ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट उससे कम होगा, रिवर्स रेपो रेट, एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विल बी ग्रेटर देन दैट। अंडरस्टूड? दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, तो पॉलिसी रेट्स हैव बीन अनचेंज्ड। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट होती है दैट इज फोकस्ड ऑन पॉलिसी रेट्स and how the RBI is going to control the flow of money in the economy. Understood? The second prediction by the second point of monetary policy report is the real GDP growth has been pegged at 10.5%. The third important point, as I said in the very beginning, is कि RBI is going to continue with the accommodative stance. Accommodative stance means the liquidity should be pushed high, that is expansionary policy should be pursued. At the same time, inflation should be checked, because expansionary policy pursue करने में there is a risk of inflation, because expansionary policy means the government is trying to push money into the market, and at that time when the money supply is increasing, there is a high risk that the inflation will go high. ठीक है, तो the RBI is now going with a very rational policy, that is accommodative stance. Accommodative stance means we are going to push money into the market, at the same time we are going to we are going to keep our inflation in check also, but that is accommodative in the sense ki RBI is going to do anything to keep the liquidity in the market up to optimal stance. So that is the monetary policy report. These were the now expansionary monetary policy, expansionary contractionary monetary policy दो होती हैं.
एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज बाय डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट. डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट का एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग है इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ मनी इनटू द मार्केट. कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग है sucking the money from the market to the RBI. डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिक्रीज कर देगा तो इंटरेस्ट रेट बेसिकली होता है रेपो रेट, रेपो के थ्रू गवर्न होता है. तो रेपो रेट अगर आरबीआई डिक्रीज कर देगा तो क्या होगा, तो बैंक्स का अपना इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बैंक्स की बोरोइंग कॉस्ट जो आरबीआई से बोरो करने की कॉस्ट है वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि आरबीआई अब कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है एसबीआई को, तो एसबीआई भी कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा अपने कस्टमर से. ठीक है, तो दैट इज अ वेरी आइडियल सिचुएशन. बट द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैज फेल्ड इन इंडिया. Very important assessment about monetary policy is that although the government or the RBI has been consistently decreasing interest rate, but the consistent transfer of this decrease of interest rate has not taken place from the commercial banks to the retail customers or the customers. उसके पीछे दो तीन important वजह हैं, we will be dealing with that. The second important thing is reduce reserve requirements. अब reserve requirement क्या होती है? CRR और SLR. CRR and SLR. CRR is around 4%. मतलब अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी के फॉर्म में, तो उस 100 करोड़ का 4% आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है एज अ कुशन अगेंस्ट द बैंक रन. एक कुशन होता है कैश रिजर्व रेशियो. अगर बैंक रन हो जाता है, बैंक रन मीन्स बैंक दिवालिया हो जाता है, इन दैट केस 4 करोड़ रुपए यूज किए जाएंगे इस बैंक के जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे करने के लिए. ये होता है सीआरआर का मेन मोटिव. नाउ एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड स्टैट्यूटरी? बिकॉज इट हैज बीन डिफाइंड अंडर अ लॉ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ओके, सीआरआर हैज बीन डिफाइंड अंडर आरबीआई एक्ट 1934. एसएलआर हैज बीन डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो अब स्टैट्यूटरी इन द सेंस, स्टैट्यूटरी का मीनिंग होता है दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ स्टैट्यूट और अ लॉ. तो इसके लिए एक लॉ कौन सा है? स्टैट्यूटरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो इट इज अराउंड 19.5%. यानी अगर 100 करोड़ है तो 4% तो आपको एसएलआर में आरबीआई के पास रखना और सीआरआर में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा. आपके पास बचा कितना? 96 करोड़. अब उस 96 करोड़ में से 19.5 करोड़, क्यों 19.5 करोड़ ऑफ टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, NDTL, मतलब टोटल आपके पास जितनी भी लायबिलिटीज हैं. लायबिलिटीज क्या होता है? डिपॉजिट्स. जो लोगों का डिपॉजिट है वो आपकी लायबिलिटी है. तो अगर आपके पास 100 करोड़ की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है तो उसमें 4 करोड़ तो पहले आरबीआई के पास रख दो, आप पास बचे 19.6 करोड़. आप उस 4 करोड़ को तो यूज ही नहीं कर सकते किसी भी तरीके से. जो दूसरा है वो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी, it is concerned with this. CRR is concerned with the bank run, SLR is concerned with liquidity of the market. और ये गवर्नमेंट आरबीआई मैंडेट करता है कि हर बैंक को एक लिक्विडिटी में एडजस्ट करने के लिए अपने पास रखना पड़ेगा 19.5 करोड़ अगर 100 करोड़ आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, टू एड्रेस द लिक्विडिटी कंसर्न्स. कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत लो हो गई तो आप इस जो आपने ये कोटा अपना रख रखा है, इस कोटे का यूज करके आप लिक्विडिटी की एडजस्टमेंट करोगे. इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी जाती हैं, गोल्ड रखा जाता है, ये सारी चीजें. अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो एसएलआर कोटा में है उनका यूज कर सकती है रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में, बट रेपो रेट में एसएलआर की सिक्योरिटीज को नहीं यूज किया जा सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है इन रेट्स को, तो अगर 4% से 3% कर देती है तो आरबीआई के पास 3 करोड़ रखना पड़ेगा एंड इस बैंक के पास 97 करोड़ हो गया. और 19.5% से 15% कर देती है तो 15 करोड़ इधर और 3 करोड़ इधर, तो टोटल 18 करोड़ रुपए ही इसको रिजर्व में रखना पड़ेगा. नाउ 82 करोड़ रुपीज आउट ऑफ 100 करोड़ रुपीज इट कैन लोन टू द कस्टमर्स. तो जब गवर्नमेंट रिड्यूस करती है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को, तो इन दैट केस द आरबीआई इज ट्राइंग टू इंक्रीज लिक्विडिटी इनटू द मार्केट एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. अब एक्सपैंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं. आरबीआई को लगा कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है. अगर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है
तो आरबीआई को पैसे फेंकने हैं बेसिकली किसमें, मार्केट में। अब मार्केट में कौन है, बैंक्स हैं, ओके, बैंक्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, एनबीएफसीज हैं, है ना। अब जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता क्या है, अभी विल बी डिस्कसिंग दैट आल्सो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं बैंक्स, कॉर्पोरेट, एनबीएफसीज और ये सारे मेनली, ठीक है। अब अगर इनके पास सिक्योरिटीज हैं, फॉर एग्जांपल बैंक के पास 50 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी है, तो 50 करोड़ रुपए के कागज है इनके पास, ठीक है। एक कागज है जिसपे लिखा हुआ है कि आई विल द आरबीआई विल पे यू 50 करोड़ रुपीज। अगर ये कागज आरबीआई को बेच दे तो इसको 50 करोड़ मिल जाएंगे। सिमिलरली ओपन मार्केट में जाके आरबीआई कहता है कि हम सारी सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, लाओ। इन दैट केस banks, NBFCs, corporate will sell their securities to RBI and in turn they will get cash. अब मार्केट में कैश ज्यादा हो गया, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई मार्केट में, ओके। नाउ व्हाट इज GSAP 1.0? Last year government brought two important schemes. The first one is TLTRO, targeted long term repo operations. The second one is Operation Twist. We will be seeing as to what these are, okay, in a bit of detail, because for prelims this year, the kind of economic stagnation we are in, this is very important, okay. That is why we are going to discuss. The first one is targeted long term repo operations, TLTRO. The second one is Operation Twist. दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। That difference is that TLTRO was launched to check the yield YIELD on short-term government securities, GSEC। short-term government securities का yield जो था वो increase हो रहा था, उसको चेक करने के लिए TLTRO आया, okay. Operation Twist on the contrary is to manage the difference between the repo rate and long term securities, okay, sorry, to manage the yield of YEILD, yield of long term securities, ठीक है। Operation Twist was done so that the long term securities का yield को कंट्रोल किया जा सके और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का yield और रेपो रेट के डिफरेंस को कंट्रोल करने के लिए आया TLTRO। Now we were talking about the failure of monetary policy earlier, कि monetary policy has failed, ठीक है। तो we were talking about the failure of monetary policy. Now what is the failure of monetary policy? Failure of monetary policy का मीनिंग है कि if RBI wants to control the inflation by controlling the supply of the money in the market, then RBI will do what will the RBI do? RBI will increase the repo rate. अगर RBI को मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो RBI क्या करेगा? रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। दैट इज RBI will increase the cost of borrowing, okay, for what? SBI for example, ठीक है। एंड जो कमर्शियल बैंक्स हैं वही मनी क्रिएटर इन द मार्केट है, ये SBI है। तो अगर ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो गई मार्केट में तो SBI से जो लोन लेने वाले लोग हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी, तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लोन्स महंगे हो गए तो लोन लोग कम लेंगे और इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे, तो मार्केट में मनी कम आएगा। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशन।
But this has not been taking place. This is an ideal situation. This has not been taking place in the original situation. क्यों? डिस्पाइट द फैक्ट कि आरबीआई ने कंसिस्टेंटली रेपो रेट इंक्रीज की है, उसके बाद भी मनी सप्लाई मार्केट में वैसी ही बनी हुई है. या फॉर एग्जांपल उसका ऑपोजिट, आरबीआई ने मार्केट वो रेपो रेट को कॉन्स्टेंटली डिक्रीज किया है, उसके बाद भी एसबीआई या जो बैंक्स हैं दे हैव नॉट ट्रांसफर्ड दिस डिक्रीज टू इट्स कस्टमर्स. तो यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हैज फेल्ड. मतलब एसबीआई आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, अब वो ट्रांसमिट अगर मार्केट तक हो जाएगी तो ये कहा जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हैज सक्सीडेड. अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई से मार्केट नहीं जा रही है तो दैट विल बी टर्म्ड एज अ फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो दिस इज हैपनिंग. हो क्या रहा है कि आरबीआई तो इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, बट एसबीआई के पास बोरोइंग का रेट तो कम हो गया, बट एसबीआई जो है वो अपने कस्टमर्स को ये डिक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ऑफर कर रहा. तो इसके पीछे वजह क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन? द मेन रीजन इज कि जो एसबीआई या कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके फंड्स का जो ग्रेटर पोर्शन है, वो ग्रेटर पोर्शन आरबीआई बोरोइंग है ही नहीं. अंडरस्टूड? एसबीआई और जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनकी बोरोइंग का ग्रेटर पोर्शन डिपॉजिट है. मतलब ग्रेटर पोर्शन ऑफ देयर बोरोइंग इज कमिंग फ्रॉम डिपॉजिट्स एंड नॉट फ्रॉम द आरबीआईज बोरोइंग. अंडरस्टूड? इस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है नाउ, जो लैंडिंग रेट है, आरबीआई मैंडेट करता है कि जो लैंडिंग रेट जो है, फॉर एग्जांपल अगर इसको डिलीट कर दें ऐसे, तो आरबीआई मैंडेट्स दैट बैंक्स कैन चूज either repo rate, ओके, या 3 month या 6 month गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या टी बिल्स का जो रेट है ना, या एनी अदर रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश्ड बाय एफबीआईएल. ठीक है, एफबीआईएल आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है जो कि बेंचमार्क रेट्स पब्लिश करती है. बेंचमार्क रेट्स, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारी चीजें पब्लिश करती है. तो आइदर रेपो रेट चूज करो, या 3 month 6 months की जो टी बिल का जो इंटरेस्ट रेट है वो चूज करो, या एफबीआईएल के द्वारा जो पब्लिश की जाने वाली कोई भी और बेंचमार्क रेट चूज करो अपने लोन्स की कॉस्ट, लोन्स के लिए. तो what were these banks doing was, एसबीआई फॉर एग्जांपल, एसबीआई लोन कैसे देता है अपने कस्टमर्स को? एसबीआई है ना, अगर इसको लोन देना है किसी अपने कस्टमर को, तो इसके पास डिपॉजिट्स मान लो 100 करोड़ रुपए का है. ओके, तो ये इस डिपॉजिट्स के थ्रू ही लोन देगा. अंडरस्टूड? बट व्हाट हैपेंस इज, व्हेन अगर ये 100 करोड़ का डिपॉजिट इसके पास है और 20 करोड़ इसके पास आरबीआई से बोरोइंग है, ठीक है, आरबीआई से बोरोइंग है 20 करोड़, 100 करोड़ इसके पास अपने डिपॉजिट्स हैं, तो व्हाट कैन इट डू? अगर इस 20 करोड़ में और ऐड करना चाहे अगर ये, है ना, तो बहुत जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो लो है, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर दिया. इन दैट केस मेजॉरिटी ऑफ द finances that bank is having is not from RBI but from deposits. इसीलिए यहां पे जो इंटरेस्ट रेट चेंज होती हैं उनका इस बैंक की लेंडिंग रेट पे बहुत असर नहीं पड़ता है. ओके, अब इसको एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने कहा कि द बैंक्स शुड लेंड एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट. मतलब आप अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिटरमाइन करेंगे कहां से? MCLR से, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट. यानी आपको 1 रुपए रेज करने का जो फंड आता है, कॉस्ट आता है, 1 रुपए रेज करने का जो कॉस्ट आता है, एक बैंक को अगर 1 रुपए रेज करने या 1 रुपए लोन लेना है, तो 1 रुपए लोन लेने का जो कॉस्ट आएगा, उस कॉस्ट के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट शुड बी MCLR प्लस अदर प्रीमियम्स. Okay, interest rate should be MCLR plus other premium.
That is now the government, the RBI is trying to link the interest rate of banks to what? MCLR के थ्रू रेपो रेट से लिंक करने की कोशिश कर रहा है. क्यों? क्योंकि रेपो रेट पे गवर्नमेंट बोरोइंग, जो SBI है वो RBI से बोरो करता है रेपो रेट पे. अगर समहाउ हम इस इंटरेस्ट रेट को डिफाइन कर दें रेपो रेट के टर्म्स में, तब तो अगर ये वाला चीज वेरी करेगा, है ना, अगर मार्जिनल कॉस्ट यानी 1 रुपए का रेज करने का कॉस्ट डिक्रीज हो जाए, इन दैट केस interest rate will also decrease, and that then a transmission of monetary policy will take place in a more in a more easier way. So that was a failure of monetary policy. Okay, now back to what? TLTRO and Operation Twist. TLTRO में simple है. Now what is bond yield? A very controversial topic, very ऐसा topic जहां पे मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिनको एक्चुअली पता है कि बॉन्ड यील्ड क्या है. इन यूपीएससी प्रिपरेशन आई एम टेलिंग, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली नो व्हाट इज बॉन्ड यील्ड. तो व्हाट इज बॉन्ड यील्ड विल बी सीन. बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड एक बॉन्ड है. बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट. बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट. इक्विटी इज शेयर होल्डिंग. बॉन्ड इज डेट, लोन. ठीक है. तो अगर एक बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट आपको बॉन्ड देती है, फेस वैल्यू इसका ₹100 है और इस पे आप अर्न कर सकते हो 10%. ये जो 10% इंटरेस्ट रेट है दैट इज ऑन द फेस वैल्यू ऑफ दिस. ओके. अगर क्या हो समहाउ ये बॉन्ड जो है बहुत सारे लोग बेचने लगे, that means perception of the government is not very strong. The people are not thinking of the government in a very high, the people are not thinking of the government in a very positive manner. उनका perception about government is not very strong. तो सेकेंडरी मार्केट में ये बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा बिकने लगेगा. ओके. अब जिसकी सप्लाई बढ़ जाती है उसका क्या होता है? उसका प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि अब सब ये बॉन्ड बेचना चाहेंगे, ऑफ लोडिंग कर रहे होंगे, कोई परचेज नहीं करना चाह रहा होगा. तो जो ये बॉन्ड था वो आपको 10% इंटरेस्ट देता है किस पे? फेस वैल्यू पे, ₹100 पे. लेकिन एक इन्वेस्टर है, उसको लग रहा है कि इस बॉन्ड को होल्ड करने का एक फॉर एग्जांपल 1 ईयर की मैच्योरिटी है. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि अगर मैं इस बॉन्ड को 1 साल तक होल्ड करूंगा तो मुझे लास्ट में मिलेगा ₹110. ओके. इसकी बजाय अगर मैं समहाउ ये बॉन्ड बेच दूं ₹94 में, ₹98 में, है ना, और 98 और ₹49 के 2 बॉन्ड खरीद लूं, ₹49 के 2 बॉन्ड खरीद लूं. ओके. जो कि 11% इंटरेस्ट या 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं. ओके. तो मेरे को बेनिफिट हो जाएगा, 110 से ज्यादा रुपए कमा लूंगा मैं. तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को बेच देगा एट अ लोअर प्राइस इटसेल्फ, इवन एट अ लोअर प्राइस. क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स खरीदूंगा. ओके. 6 मंथ के बॉन्ड खरीदूंगा, 6 मंथ के या 3 मंथ के G-Secs T-bills खरीद लूंगा, उस पे अपना पैसा बना लूंगा. अंडरस्टूड? उस पे इतना पैसा बना लूंगा जो कि इससे ज्यादा आएगा. इन दैट केस हुआ क्या कि ये बॉन्ड तो बिक गया ₹98 पे. अब इसको जिसने खरीदा उसने इसको ₹98 पे खरीदा, लेकिन उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10%. तो यील्ड जो होगी इस पर्सन का कॉस्ट, इसको अभी इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ₹10. बट इसने खरीदा कितना? 98 में. इसको टोटल बेनिफिट कितना हो गया लास्ट? अगर ये इंसान फॉर एग्जांपल इसने ये बॉन्ड खरीद लिया ₹98 में ही और इसको 1 साल के एंड में ₹110 मिल गए, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 98 + 2 100 और 10 ₹112. तो अब इसको प्रॉफिट हो गया ₹112. लेकिन अगर ओरिजिनल बायर इसको पूरे 1 ईयर तक होल्ड करता और ये बेचता तो इसको 110 मिलते हैं, तो इसको प्रॉफिट कितना होता? ₹10.
तो you can see that now this bond is being sold at a lower price and the rate of the yield of the bond, rate of interest तो fix है, rate of interest is fixed on the par value, but the yield on the bond, the earning on the bond is increasing. This is called bond yield. अब bond yield बहुत सारे factors पे depend करता है, we'll be discussing, but this is bond yield. और अगर कोई आपको कुछ और बताता है, that is not bond yield, that is something else and the person is confused. तो this is called bond yield. Bond yield मतलब first of all this interest rate is fixed, either it is discounted or interest rate is fixed. Discounted का मतलब होता है कि ये आप जब ये बॉन्ड खरीदने जाओगे तो यहाँ पे एक पर्चा फाड़ने वाला लगा होगा, उस पर 10 रुपए लिखे होंगे, 10 रुपए लिखे होंगे, मतलब अगर आप ये बॉन्ड बेचने जाओगे आफ्टर 1 ईयर तो 100 रुपए मिलेंगे आपको, 10 रुपए और मिलेंगे, तो आपको एट द एंड 110 ही मिलेगा. या तो परसेंट में लिखा होगा या तो फिक्स अमाउंट ऑफ मनी में लिखा होगा. जब फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पे होता है तो वो डिस्काउंटेड होता है, जब परसेंट में होता है तो ये नॉर्मल बॉन्ड. तो बॉन्ड यील्ड का मीनिंग हुआ कि अगर सेलिंग ऑफ द बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस, है ना, एट अ लोअर प्राइसेस, तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, फोकस इस पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. दैट मीन्स अगर प्राइस इज ड्रॉपिंग, है ना, तो बॉन्ड यील्ड इज इंक्रीजिंग. दिस इज द कर्व. अगर बॉन्ड यील्ड इसको बना ले, बॉन्ड यील्ड, अगर प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज डिक्रीजिंग तो बॉन्ड यील्ड इज इंक्रीजिंग. दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. दिस इज द फंडामेंटल ऑफ बॉन्ड यील्ड. तो एक तो ये हो गया. अब दूसरा इसमें प्रिंसिपल क्या है कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स का क्या कंसेप्ट है. लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो होते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ठीक है, अगर आपका कर्व बॉन्ड यील्ड का ऐसा है, दिस इज टाइम, दिस इज बॉन्ड यील्ड, तो यू कैन सी दैट फॉर, यहां पे अगर 30 ईयर्स है, ये 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, ये 10 ईयर्स है, ये 5 ईयर्स है, ये 3 months. Okay, in that case you can see that for 3-month bond the bond yield is this. Okay, for 30 years the bond yield is this. You can see that with increasing time bond yield increases. लेकिन इसको आप इससे कंफ्यूज मत करिए कि आपने एक बॉन्ड खरीद के रख लिया, अगर टाइम बढ़ता जाएगा तो उसका यील्ड बढ़ता जाएगा. नहीं, दैट इज नॉट द केस. दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. दिस शोज दैट अगर आप मार्केट में बॉन्ड खरीदने जाओगे और अगर आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड खरीदोगे तो आपको उस पर यील्ड कम मिलेगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदोगे तो आपको उस पर यील्ड ज्यादा मिलेगी. ये प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का. ओके, इसका मीनिंग ये है, इस ग्राफ का मीनिंग ये है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट is less riskier as compared to long term investment. Why? Because अगर आप बॉन्ड खरीदने जाते हो तो आप बॉन्ड खरीदते हो, करते क्या हो, अगर आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, 100 रुपीज का बॉन्ड खरीदा, एंड इन दैट केस यू आर गेटिंग 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट ऑन द फेस वैल्यू. तो ये बॉन्ड किसी कंपनी ने पब्लिश किया होगा या तो गवर्नमेंट पब्लिश करेगी. ठीक है, तो अगर कोई गवर्नमेंट, फॉर इंडियन गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड पब्लिश करके छाप के बेच दिया मार्केट में, तो इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट, इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट. क्योंकि ये बॉन्ड आपको बेचते ही आप 100 रुपीज गवर्नमेंट को दे दोगे, और आपके जैसे लाखों यूजर्स होंगे जो 100 करके कितना रुपए गवर्नमेंट को दे देंगे. गवर्नमेंट के पास वो पे करने की लायबिलिटी 1 साल बाद आएगी और 10% इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट आपको लौटा देगी. तो ये तो बॉन्ड का कंसेप्ट है. लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए ही है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू विल ट्राई टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट. ठीक है, बट यू नो दैट अगर बॉन्ड मैंने बहुत 10 साल के लिए बॉन्ड खरीद लिया तो मेरे 100 रुपए 10 साल के लॉक इन हो गए, तो मैं उस 100 रुपए का 10 साल के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा. अंडरस्टूड? इसलिए अगर ये 10 साल का बॉन्ड होगा तो उस पर इंटरेस्ट 15% होगी, यानी इंटरेस्ट का रेट हाई होगा. दिस इज नॉट द रियल इंटरेस्ट रेट दैट 10 साल का बॉन्ड देता है. इट इज एन एक्सप्लेनेटरी वन.
That means if you are trying to buy a long term bond, then your interest rate will be high. और यही इंटरेस्ट रेट यील्ड है. अंडरस्टूड. अगर आपने एक साल के लिए बॉन्ड खरीदा है तो एक साल के लिए इज रिलेटिवली शॉर्टर टाइम एज कंपेयर टू 10 ईयर्स. तो आपका जो लॉक इन पीरियड है वो भी कम है, तो आपका जो रिस्क है वो भी कम है ना. आफ्टर 1 ईयर योर मनी विल बी फ्री, आपका कैपिटल फ्री हो जाएगा. तो इस पे इंटरेस्ट रेट होगा वो 10% होगा. दैट मीन्स कम होगा. यानी शॉर्टर टर्म बॉन्ड्स जो है वो कम यील्ड देते हैं और लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स जो है वो ज्यादा यील्ड देते हैं. बिकॉज लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स का longer term bonds का rate of risk is high as compared to the shorter term bonds. Understood? So what was happening in Indian situation is कि 10-year benchmark bond yield has been consistently increasing from July 20 to February 21. कोरोना के लगने के बाद bond yield of long term bonds has been consistently increasing. और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, now you can see जुलाई 2020 में अगर वी कैन प्लॉट 5.70, 5.80, 5.76 के अराउंड बॉन्ड यील्ड था. मतलब 10 ईयर का बॉन्ड जो है वो 5.6% इंटरेस्ट आपको पे कर रहा था जुलाई 2020 में. That interest rate has increased to 6.2%. 5.76 से 6.2% increase हो गया है. The bond yield is increasing. अब bond yield increase कर रहा है, ठीक है, लेकिन what is the drawback? Why is the government trying to control this bond yield? Okay, sorry. हाँ, so first of all, why is the bond yield increasing? The first reason that I see is the fiscal deficit has been pegged at 9.8%. If I'm not true, please correct me. I remember it is about 9.8%. Fiscal deficit in the union budget of 2021. और fiscal deficit high है. Fiscal deficit high होने का meaning क्या है? फिस्कल डेफिसिट हाई होने का मीनिंग ये है कि तो गवर्नमेंट है, फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट्स द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट्स द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट. इफ फिस्कल डेफिसिट इज वेरी हाई, देन द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो हैवीली, है ना, बोरो हैवीली फ्रॉम द मार्केट. अब मार्केट में कौन होगा? बैंक होंगे, है ना, बैंक्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगी, अदर पेंशन फंड्स होंगे, है ना. तो गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूशन से बोरो करेगी बहुत हाई रेट पे. अब जब गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूशन से बाई करेगी बहुत हाई रेट पे, तो होगा क्या? क्राउडिंग आउट होगी. क्राउडिंग आउट मीनिंग गवर्नमेंट अगर बहुत सारा मनी विड्रॉ कर लेगी इन इंस्टीट्यूशन से अपने लिए, तो बहुत कम मनी बच जाएगी दूसरे लोगों को लोन देने के लिए. तो जो दूसरे लोगों को लोन देने के लिए कम मनी बचने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लोन्स पे हाई हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो व्हाट पीपल आर सेइंग इज, व्हाट इन्वेस्टर्स आर सेइंग, बेसिकली बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दीज इन्वेस्टर्स आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, व्हाट दे आर सेइंग इज कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड अगर हम खरीदना चाहें, या फॉर एग्जांपल अगर हम इसको भूल जाए, ये सारे बैंक्स इंस्टीट्यूशंस इनके पास गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, 10 ईयर वाले बॉन्ड हैं, है ना. तो अगर इनको बहुत सारा लोन गवर्नमेंट को देना है तो पैसे कहां से ले आएंगे? डिपॉजिट से या बॉन्ड से, ठीक है. तो इन दैट केस ये क्या कर रहे हैं? अपने बॉन्ड्स को ऑफलोड कर रहे हैं. जो 10 ईयर लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स हैं उनको ऑफलोड कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनपे जो इंटरेस्ट रियलाइजेशन होगा वो तो 10 ईयर बाद होगा. अंडरस्टूड? In that case, what the banks are doing is, banks want to charge now high interest to the जो रिटेल पे लोग जो पैसा ले रहे हैं उनको बैंक्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द मनी तो गवर्नमेंट ले लेगी. इन दैट केस मनी आएगा कहां से बैंक के पास? बैंक क्या करेगा? अपने बॉन्ड्स को बेच देगा और बॉन्ड बेच के पैसे कमा लेगा. तो बॉन्ड बेचेगा जब, तो क्या होगा? फिर हमने पढ़ा था अभी पहले कि जब बॉन्ड बिकते जाएंगे तो उनका प्राइस
क्योंकि बहुत ज्यादा सप्लाई बेच हो गई मार्केट में एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू सेल ऑफलोड द बॉन्ड्स. इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि बॉन्ड का प्राइस गिरता चला जाएगा मार्केट में एंड बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होती चली जाएगी. अंडरस्टूड? तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होता जा रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम. तो इन दैट केस बॉन्ड यील्ड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट हैज ब्रॉट. So these are the three reasons. High fiscal deficit 9.5%. It was not 9.8%. I'm sorry. Recovering economy में लोगों का investment needs are high. The firms are trying to borrow, है ना? In that case, government जो bond banks हैं वो पैसा लाएं कहाँ से? वो अपने bonds बेच के cash इकट्ठा कर रहे हैं और जब वो bonds सब बेच रहे हैं तो bonds का price गिरता जा रहा है जिसकी वजह से yield बढ़ती जा रही है and increasing liquidity also. ठीक है. तो अब इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट हैज ब्रॉट जीएसएपी. जीएसएपी अब क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान इज नथिंग बट ओपन मार्केट जीएसएपी 1.0. अब सिंपल है कि अगर मार्केट में बॉन्ड्स की प्राइस क्यों गिरता जा रहा है, बॉन्ड का प्राइस क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि बॉन्ड मार्केट में फ्लश हो चुके हैं. मार्केट में सारे बैंक, सारे पेंशन फंड्स अपने बॉन्ड बेच रहे हैं कि हमें जल्दी से हमारा बॉन्ड बिक जाए, हमें पैसे मिल जाए. क्योंकि उनका वो जो पैसा है वो 10 ईयर के लिए लॉक्ड हो चुका है. इन दैट केस सारे मार्केट इज फ्लडेड विद बॉन्ड्स. लॉन्ग टर्म बॉन्ड से फ्लड हो चुका है. तो अब फ्लडिंग की वजह से बहुत ज्यादा सप्लाई हो गई लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का प्राइस गिर गया तो यील्ड बढ़ गई. इन दैट केस गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? इन बॉन्ड की यील्ड को स्टेबलाइज करने के लिए अगर समहाउ ये गवर्नमेंट ये सारे बॉन्ड्स को सक इन कर ले, है ना, तो अगेन सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगी और इन बॉन्ड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. तो सेम वही काम आरबीआई ने कुछ नहीं किया. आरबीआई ने कहा है ठीक है, आरबीआई ने कहा है कि हम खरीदेंगे सारे बॉन्ड्स. बॉन्ड मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए हम खरीदेंगे बॉन्ड. अगर हम बॉन्ड खरीदेंगे कितने रुपए का? 1 ट्रिलियन रुपीस का. ट्रिलियन रुपीस का. ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर का, यानी 100 लाख करोड़ रुपीस का. ठीक है. अब इतना पैसा 25,000 करोड़ रुपीस का, 100,000 करोड़ रुपीस है. ठीक है. तो 25,000 करोड़ का पहला ट्रांच 15 अप्रैल को, यानी गवर्नमेंट 25,000 करोड़ रुपीस यूज करके ये बॉन्ड्स खरीद लेगी. यानी अब मार्केट में पैसे बढ़ गए और ये बॉन्ड आ गए आरबीआई के पास. ये बॉन्ड बेच कौन रहा था? एसबीआई और ये सारे कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, यानी ये पैसे आरबीआई ने इन बैंक्स को दे दिए और उनसे बॉन्ड खरीद लिया वापस. तो दो चीजें हो गई. एक तो ये कि हाई फिस्कल डेफिसिट की वजह से जो गवर्नमेंट बोरोइंग थी उसकी नीड को पूरा कर लिया, और इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट में, क्योंकि अगर बॉन्ड्स बहुत ज्यादा यील्ड गिर जाती है ना, तो जो एग्जिस्टिंग बैंक ने जो बॉन्ड खरीदा था 100 रुपीज का, है ना, 10 साल के लिए, अब वो 80 रुपीज में बिक रहा होता तो बैंक्स को लॉस होता. अंडरस्टूड? अगर यील्ड बहुत ज्यादा हो जाती, प्राइस गिर जाता, तो जो 100 रुपीज का बॉन्ड बैंक बेच रहा था वो 80 रुपीज में बिक रहा होता. इसकी वजह से बैंक को लॉस होता. तो उसको लॉस को कंपनसेट करने के लिए आरबीआई ने कहा कि हम पैसे लगाएंगे और हम सारे बॉन्ड खरीदेंगे सेकेंडरी मार्केट में. सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट जहां पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है. अगर एनी कंपनी इज गोइंग फॉर आईपीओ, दैट इज यानी फ्रेश सेल ऑफ शेयर्स होता है, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है. अगर वंस अ बॉन्ड और अ शेयर हैज बीन सोल्ड, अब उसकी ट्रेडिंग चल रही है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होती है. तो आरबीआई सेड दैट वी आर गोइंग टू परचेज ऑल द बॉन्ड्स all the bonds that banks are selling worth 1 trillion rupees, and उसका यूज करके हम बॉन्ड मार्केट को स्टेबलाइज करेंगे. अंडरस्टूड? इससे क्या होगा कि अगर जो 100 रुपीज बिक रहा था 80 रुपीज में, वो फिर 100 रुपीज में बिकना शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि प्राइस दोबारा अप होना स्टार्ट हो जाएगा और यील्ड गिरना शुरू हो जाएगी. नाउ अगर 100 रुपीज का बॉन्ड बिकने लगा तो बैंक्स के पास प्रॉपर फंड होंगे लोन करने के लिए. अगर लोन करने के लिए प्रॉपर फंड होंगे तो जो लोन पे इंटरेस्ट रेट है वो भी लो हो जाएगी. अंडरस्टूड? अगर इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगी तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी रहेगी. यानी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोग एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं उनके पास
कैश क्रंच की प्रॉब्लम नहीं आएगी. अंडरस्टूड. दैट इज द होल राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स का implication. राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स मेक लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉस्टली, है ना. High bond yields represent a negative investor sentiment, and I have told you all this. This is not important. So that was all for the bond yield, long term operations and GSAP.